Hello everybody, welcome to the channel. So this video is about the review of the book The Unparalleled Roadmap Handbook to Get Your Dream Job by Uday Sonthalia. So as you can see, this video is different from the videos I regularly upload on my channel. So this is my first video about reviewing a book. Yes, I have given my views on books related to chartered accountancy books, but this is different. Okay, so looking forward to making more such videos. So I'm gonna start with this video. So first of all, I bought this book on the recommendation of a famous YouTuber. At that time, she was a growing YouTuber, and now she has crossed 1 million subscribers on YouTube. That is Alina Rai's Life. You must have heard about this name, and you must have also visited her channel because that is a wide reach. Okay, so I have purchased this book on her recommendations. She has reviewed this book on her channel to her subscriber, as I am also a subscriber of her channel, so I followed her. So I purchased this book last year when there was lockdown, and I uh, purchased this from the link given in her channel's video description box. So that link directly took me to Uday Santhalia's website, and there I placed an order. So when I bought this book, I was in a job which was really frustrating, and I really wanted to change. And you can see the title of this book, The Unparalleled Roadmap Handbook to Get Your Dream Job. This dream job word really, leaves an impression on your mind. What makes you to purchase, to get attracted towards this. So that also happened with me, and I was so attracted with the title of this book, and I really thought that this book might be having something amazing which I really wanted to know, and that what made me to purchase that book. And the review of her video doesn't contain so much about this book. I don't know how many of you refer to the recommendations of the YouTubers, but I after buying this book, I have got to know that most of the things might be this time this happened, so might be these things be happening with other recommendations also, that the YouTuber who makes recommendations may not have read this book themselves before recommending. They are just doing publicity of the person who have asked her. Okay, so आई एम श्योर कि अलीना रईस ने इस बुक को नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज अगर पढ़ा होता, बिकॉज शी मस्ट बी नोइंग कि उनके चैनल पे किस तरीके का ऑडियंस बेस है. ठीक है, ऑडियंस लाइक आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम ऑल्सो a subscriber to her channel, and there might be students also, there might be freshers also who are subscribers of her channel, and there might be persons who are in job and who are also subscribers of their channel. So she should have told about what is it in this book, and for whom this book is best. So after going through the book, as you can see that I have a complete reading of this book because I've highlighted some words. You can see that I have already read this book. I've just finished this book. So I thought to make a video about my reviews on this book, because before you invest your money in this book, you should know about this book, because what it has in, what are the contents of this book. So you can see I have bill also, and this book costed me around 335 rupees. You can see this is not a small penny, right, to invest in this kind of book. I might have, in place of this book, I've ordered some other famous books, right? And this person is very new, I don't know, I think this book is his first book from his Genie Square Concept business. So before you buy a book, you should also know about the author of the book. So this author is a graduate and a postgraduate from Amity University, and there's nothing more about this author, just that he has a company or a firm, Unisquare Concepts in Kalkaji, New Delhi. That's it, which published his book, and he has published his own book. So this is really not a good amount to invest in such kind of book, and I really feel like my money has wasted. Okay, so if this might be of 100, then it's good to go for this. But if it is costing 335 rupees, then it's a big no. Okay, so you can see first is acknowledgement, and then the title, and then there are chapters. So you can see there are 29 chapters, right? 29 chapters, and each chapter is of 2 to 3 pages, not much content. You can see the book is also thin, and the fonts are also a bit larger as compared to other books, be it any book, be it fictional or non-fictional. The font is smaller than that, and also it contains less number of pages, which means that this book has less content. Okay, it's just that the content is repeating in itself, and the way in which the chapters are divided, 29 chapters, each chapter is of 2 to 3 pages maximum, not more than that. Okay, so if you will start, then there are very basic things in this. The content
which this book is having is already available on the internet. The point here is that the contents which this book is having is already available on internet, and at some point of your life you must have gone through that content over internet, of course, which I felt, and I know many of you might also have, because इसमें जो कंटेंट है दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, और कभी ना कभी आपने ज़रूर पढ़ा होगा. वाई एम टेलिंग दिस, बिकॉज जब इसको पढ़ते वक्त इफ़ यू आर अ कम्प्लीटली फ्रेशर, आपने इंटरनेट पे इतना सर्फिंग नहीं किया है, इतना आपने एक्टिव नहीं है, आप इतना इंटरनेट पे रीडिंग्स नहीं करते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो यू कैन गो फॉर दिस. ठीक है, तो अब इसी बारे में बात करते हैं कि कौन इसको परचेज़ कर सकता है. सो जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, दोज हु आर ग्रेजुएट, एंड डेफिनेटली मैं इनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आर्टिकलशिप कर चुके हैं उनको तो मैं बिल्कुल रेफर नहीं करूँगी ये बुक. ठीक है, उनके लिए कोई और एडवांस लेवल की बुक ज़रूरत है, बिकॉज दिस बुक इज़ वेरी वेरी बेसिक. ठीक है, जो बिल्कुल ही न्यू है, जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, या फिर जो सिंपली पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कभी जॉब नहीं किया, नेवर अप्लाई टू एनी जॉब वैकेंसीज, नेवर गिवन एन इंटरव्यू, कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में इतना नहीं पता है, इंटरव्यूज़ के बारे में इतना नहीं पता है, दोज पर्सनस कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. अदरवाइज उनके अलावा ये बुक किसी और के बिल्कुल भी काम की नहीं है, बिकॉज एज आई सेड कि जो कंटेंट्स है इसमें दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन इंटरनेट, एंड हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो. ठीक है, तो बस ये है कि पॉइंट वाइज लिखते हैं, एंड मैनी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक आर रिपीटेटिव इन नेचर. ठीक है, एंड जो इसमें बातें बोली गई हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो बातें इसमें लिखी हैं, जो कंटेंट है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, वो आप ऑलरेडी अवेयर है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी ने आपको ये चीज़ें बता दी है ऑलरेडी, वो वही चीज़ इसमें लिखी है. तो जिस चीज़ के लिए वी हैव पेड अमाउंट 335 रुपीज़ इज़ नॉट एट ऑल वर्थ, बिकॉज वो हमें पहले से पता है, कुछ नया नहीं मिला है. हाँ, बट अगर स्टार्टिंग से चले तो बहुत ही बेसिक है, लेकिन लास्ट में एक दो चैप्टर है जो कि थोड़ा बहुत मुझे ठीक लगा. ठीक है, लास्ट के जो 2 चैप्टर हैं थोड़ी सी ज्ञान की बातें हैं विच कैन डेफिनेटली एड वैल्यू, तो वो चीज़ें ठीक है. लास्ट के 2-3 चैप्टर है लाइक लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिजायर, द की टू सक्सेस, एंड चैप्टर नंबर 29 मोर नॉलेज इज इक्वल टू लेस ईगो प्लस हाई लर्निंग कैपेसिटी. ये कुछ है, ये these last is okay for me, but before these all the contents were already known to me, because हमने GMCS 1 करी है, GMCS 2 करी है. आई एम टेलिंग फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर वो सोच रहे हैं अलीना इसके चैनल को फॉलो करके इस बुक के बारे में कभी सुना हो, बुक को बाय करने की सोच रहे हो कि जॉब लग जाएगी इसको पढ़ने के बाद, ऐसा कुछ नहीं है. जो इसका टाइटल है वो अपने आप में ही मिसलीडिंग है. ठीक है, इट्स नॉट अ हैंडबुक. इसमें आपको ये नहीं बताया जाएगा कि क्या प्रोसेस है, क्या करना है आपको, बस ये बताएगा कि ये चीज़ें हैं, ऐसा करने से ये होगा, कुछ कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस इसमें नहीं है. इसे जर्नल इट विल एक्ट एज अ मोटिवेशनल टूल. ठीक है, उसके अलावा नथिंग एल्स. इसमें अगर बताया है कि CV अगर इसमें चैप्टर है एक, सबसे पहला चैप्टर के बारे में बात करें, नो व्हाट एम्प्लॉयर्स लुक फॉर. चलिए, ये आप जानते होंगे कि एम्प्लॉयर्स एक अपने एम्प्लॉय में, जिस एम्प्लॉय को वो सर्च कर रहा है, जिस कैंडिडेट को सर्च कर रहा है, कोई रिक्रूटर है, तो वो एक एम्प्लॉय में क्या देखता है, बहुत बार सुना होगा आपने बहुत ही लोगों के मुँह से. ठीक है, वही चीज़ें इसमें लिखी है, बिहेवियरल एंड सॉफ्ट स्किल्स, वो सब बातें इसमें घुमा फिरा के लिखी है. उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें डेवलप द स्किल्स फॉर सक्सेस. इसमें बस कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, असर्टिवनेस, हाँ थोड़ा बहुत जो इसमें चीज़ें हैं कंटेंट्स है कॉन्फिडेंस एंड असर्टिवनेस के बारे में, दैट इज़ ओके. ठीक है, बट एज आई सेड कि जो कंटेंट है वो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे. देयर इज़ नथिंग न्यू, बस इट्स जस्ट अ थिंग लाइक कि आप रिवाइजिंग द कंटेंट. ठीक है, जो आप ऑलरेडी इंटरनेट पे कभी ना कभी आपने पढ़ा है. तो जनरली होता है ना कि वैन लाइक देयर इज़ अ शेड्यूल इंटरव्यू, यू गो टू इंटरनेट एंड सर्च अबाउट दैट कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा सकते हैं, क्या क्या करना है. तो वो चीज़ें आप कभी ना कभी इंटरनेट पर ऑलरेडी पढ़ लेते हैं. तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको जस्ट विल एक्ट एज अ रिविजनरी गाइडलाइन. ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है. स्किल्स फॉर सक्सेस, क्या क्या स्किल्स चाहिए उसके बारे में लिखा है, जैसे कि इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के 1-2 पॉइंट्स. तो जैसे कि मैंने कहा कि पेजेस चैप्टर्स में डिवाइडेड है, इतने 2-2 पेजेस का चैप्टर है. एंड उसके बाद नेक्स्ट सेशन है प्रोसीड टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन अपीलिंग रिज्यूमे. तो इसमें बताया गया है कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, बट ये नहीं बताया है कि कैसा बनाना है. ठीक है, इसमें कोई आपको प्रोसेस नहीं बताया है, सिर्फ बताया कि कैसा होना चाहिए, अपीलिंग कैसा होना चाहिए. ठीक है, क्या गाइडलाइंस है वो आप ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, पता है आपको ये सब, लेकिन आपको बनाना नहीं सिखाएंगे ये. ठीक है, इसमें आपको स्टेप्स नहीं बताएंगे कि कैसे बनाना है, इसमें क्या इंक्लूड करना है, किस सीक्वेंस में डालना है अपनी चीज़ें, ऐसे प्रॉपर चीज़ें नहीं बताएंगे. डूज एंड डोंट्स तो बता देंगे, रूल्स तो बता देंगे इफेक्टिव रिज्यूमे के, बट कैसे बनाना है वो आपको खुद ही करना पड़ेगा तैयार. फिर नेक्स्ट सेक्शन है इसमें क्रैक द इंटरव्यू इन 1 गो. इसमें बस बताया गया है कि क्या क्या स्किल्स चाहिए इंटरव्यू के लिए. अगेन जैसे कि मैंने कहा, इसमें रिज्यूमे बनाना आपको नहीं सिखाया, सिर्फ बताया है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. अगेन सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई है. इंटरव्यू के बारे में आपको इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, आपको इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, कैसे देना है, क्या स्पीच किस तरीके से मॉडरेट करनी है. सो वही इसमें थोड़ा बहुत एक पेज इसमें आपको बता दिया टेलीफोनिक इंटरव्यू क्या होता है, वीडियो इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू
कैसा होता है, बिजनेस अटायर क्या होना चाहिए, वो तो हमें ऑलरेडी पता है ना बिजनेस अटायर के बारे में, लुक्स एंड ये चीज़ें तो हमें पता है बिफोर गिविंग एन इंटरव्यू। हम 1000 बार 10 लोग मुँह से सुनते आ रहे हैं ऑलरेडी, इंटरनेट पे रीड करते आ रहे हैं, राइट। तो कुछ इसमें नया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मोस्ट कॉमन इंटरव्यू में आपको 4-5 वही जो आपको ऑलरेडी पता है वही चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, ठीक है। 1-2 पॉइंट्स आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा लगेगा जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगेन इट इज़ एक्टिंग एज अ रिविजनरी, ठीक है। तो रिवाइज हो जाएगा आपका कंसेप्ट, बस और कुछ नहीं है इसमें। अगर आप ऑलरेडी एक सेल्फ ग्रूम पर्सन है तो आपके लिए बुक तो बिल्कुल वेस्ट है। देन इसमें जो लास्ट सेक्शन है, अटेन योर गोल्स, मेक योर वे अप इन द ड्रीम जॉब, ठीक है। जैसे कि जॉब पा लेते हैं उसके बाद उसको आपको उस पोजीशन को होल्ड भी करना होता है, वहाँ पे आपको इंक्रीज़ भी करना होता है अपनी पोजीशन एंड ग्रोथ भी करनी होती है, ठीक है। तो इसमें वही है कि आप एक वर्क प्लेस में कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे कनेक्शन बनाएंगे, आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कैसे होगी, आप लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। हाँ, दिस आई गॉट टू नो समथिंग न्यू, लीडरशिप स्टाइल्स थोड़ा बहुत इसमें एग्जाम्पल है 1-2 पेज का, थोड़ा और ब्रॉडर वे में लिखा होता है कंसेप्ट को, थोड़ा और डिटेल्ड में विद गुड एग्जाम्पल्स, तो थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग होता है। 1-2 पेजेस में बातें खत्म नहीं होती है, राइट, ठीक है। जैसे कि इसमें एक चैप्टर है वेज टू किल ईगो एट वर्क प्लेस, और स्माइल होना चाहिए फेस पे, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी रिटन विच यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने कहा लास्ट सेक्शन थोड़ा बहुत मेरे काम का था, बाकी इसके अलावा ऑफ वेरी लेस यूज टू मी, ठीक है। बिकॉज अगर आप ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं तो ये बुक आप रेफर ना करें, इस बुक के लिए ना जाएँ। डू नॉट वेस्ट योर 335 रुपीज़ फॉर दिस बुक। और अभी भी आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे तो प्राइस इतना ही है, इसका प्राइस इन्होंने डिक्रीज़ नहीं किया है, ठीक है। इसके कंपेरिजन में कोई और आप अगर इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए बुक लेना चाहते हैं तो गो फॉर अदर बुक्स जो कि आपको 100 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, राइट। सो जो फ्रेशर्स है रिकमेंडेशन उनके लिए है जो कि बिल्कुल फ्रेशर है। अगर अलीना रईस ने इस बुक को रीड किया होता तो बता पाती, साफ साफ डिफ्रेंशिएट कर पाती कि ये बुक किसके लिए, किसको परचेज करनी चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। जो उसका टाइटल है वो बिल्कुल ही मिसलीडिंग है, ठीक है। कोई आपको इसको पढ़ने के बाद आपको कोई ड्रीम जॉब नहीं मिल जाएगी, ठीक है। आपको अपनी स्किल्स और सारा काम आपको खुद पे ही करना है, इट्स जस्ट रीडिंग मटीरियल, ठीक है। बस इसमें कंटेंट्स दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी होगी, उसमें एक ही बात को कितने तरीके से कही है आपको कन्विंस करने के लिए, वैसा इसमें नहीं है। So for freshers, it's good to go. Otherwise, for experience, it's a big no. That's all. Thank you.